Hello everyone, good morning students. In the last video we are discussing uniform motion in a straight line, in which we have discussed what is the definition of uniform motion in a straight line. When a particle is traversing equal interval of distance in equal interval of time, then that particle is said to be in uniform motion. And if that motion is along one dimension, or you can say along a single coordinate, then it is said to be in straight line. You can see in this diagram that the particle is moving along the x-axis only. O is the origin, A is at t equal to 0, B is at t equal to t1, C is at t equal to t2. So the distance of A point from origin is x0, B is x1, C is x2. Now if we are saying that a particle is moving from A to B, from t equal to 0 to t equal to t1 with velocity v, then the total distance is x1 from the origin to B point. Then x1 can be calculated as OA plus AB, and we know that OA is equal to x0, but we don't know AB. But we know that time taken by A to B is t1 minus 0 and velocity is v. And we have read in our previous smaller classes that relation between speed, velocity, speed, distance and time. So you can use that relation and you will get that AB will be equal to V into T1, where V is the velocity of the motion and T1 is the time taken from reaching A to B. So X1 can be calculated as X0 plus V into T1. In the similar way, when the particle is moving up to C point from the A, then this distance is basically X2 from the origin, and you know that X0, then you can calculate X2 will be equal to x0 plus v into t2, because the particle is taking t2 time from A at t equal to 0 to C at t is equal to t2. So when you will subtract these two equations, then you will get on left hand side x2 minus x1 will be equal to v into t2 minus t1. When you will get v, then it will be equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1. It means v is constant throughout the whole motion. It doesn't depend on any factor. So in uniform motion you can see that velocity of the uniform motion is always constant. Now there are some points regarding to uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन में बेटा पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बट यूनिफॉर्म मोशन इज takes place along a straight line in a given direction. In that case, if we are taking in a particular direction, in that case you can say distance is equal to displacement covered by that object. This is the case when we are taking the motion as a straight line. Second point is velocity of uniform motion is same for different choices of T1 and T2. In the previous slide you can see that at point B and C there are two different points at which the time is t1 and t2, but the velocity in both the cases are equal, which is equal to v, and we have find out it as equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1. The next point is velocity of uniform motion is not affected due to shifting of origin. शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, जितना भी इम्पैक्ट होगा वो सिमिलरली x2 के कोऑर्डिनेट में होगा और x1 के कोऑर्डिनेट में भी होगा, जितना भी ओरिजिन के शिफ्टिंग की वजह से होगा. और x2 और x1 में दोनों में अगर सेम चेंज होता है तो वो चेंज हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. इसलिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के साथ में हमारा वेलोसिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट ऑफ द ओरिजिन. अगर हम पिछली स्लाइड की बात करते हैं तो जो पॉजिटिव वैल्यू है ये हमारी अगर इस ओरिजिन से राइट साइड में जाते हैं तो हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर हम इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हम नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं. फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन कोई भी कोज और इफेक्ट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में उसकी वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन इक्वल रहती है. अगर हम कोज और इफेक्ट की बात करेंगे मीन्स वहाँ पर फोर्स रिक्वायर्ड है, और हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन है इट मीन्स कि वहां पर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, बट यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमारा जो पार्टिकल है उसमें थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है. इसलिए यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी कोज और इफेक्ट का इम्पैक्ट नहीं होता है.
द नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन के केस में इक्वल रहती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पोजीशन टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में हम क्या लेके चल रहे हैं बेटा, हम एक स्ट्रेट लाइन लेके चल रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, ये कहीं पे हमारे एक्स एक्सिस मतलब पोजीशन एक्सिस को कट कर रही है। तो जो ये ओ एक्स नोट डिस्टेंस है, दिस इज बेसिकली नोन एज इंटरसेप्ट। इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। एक्स नोट पॉइंट से पास होती हुई लाइन है कोई ए बी। इस लाइन पे हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ए और बी। सो हमारे पास ए और बी कोई दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। उन पॉइंट पे कोऑर्डिनेट है x1 t1 और x2 t2। जब हम x1 t1 लेके चलेंगे और x2 t2 लेके चलेंगे तो हमारे पास, हमने इससे पहले जब एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी तो उसके केस में हमने देखा था बेटा कि हमारा कोई भी कर्व होता है, लेट अस सपोज ये वाला कर्व था, तो हमने जो भी दो पॉइंट लिए थे उनके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी। बट इस केस में तो हमारा मोशन ही किसके अलोंग है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, तो हमें कोई अलग से कर्व ड्रॉ करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर जब हम इस लाइन का स्लोप लेंगे तो देखो जो ये AC लाइन है, दिस इज बेसिकली पैरेलल टू ओरिजिन, सो यू कैन से दैट AB मेकिंग एन एंगल थीटा विद द AC, देन tan थीटा विल बी इक्वल टू द स्लोप। और स्लोप को आप ACB ट्राइंगल से पाइथागोरस अप्लाई करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे बेटा, स्लोप विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC। इट मीन्स BC हमारा कितना हो जाएगा, देखो B कोऑर्डिनेट x2 है, C कोऑर्डिनेट x1 है, तो BC कितना बच गया, x2 माइनस x1। सिमिलर वे में AC कितना बच गया बेटा, T2 माइनस T1। और एवरेज वेलोसिटी जो यहाँ पर स्लोप होगा वो क्या देगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन की वेलोसिटी देगा। सो V विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। यू कैन फाइंड इट एज फ्रॉम दिस डायग्राम एज वेल। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की यूनिफॉर्म मोशन में। अब हमारा बेटा अभी तक हमने जो भी कर्व पढ़े हैं, ध्यान रखना है वो हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़े हैं, ये आप 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। लेकिन जो हम अगले कर्व पढ़ेंगे वो वेलोसिटी टाइम आएंगे, एक्सेलरेशन टाइम आएंगे। तो देखो पहला हमारा कर्व आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हमारा क्या है बेटा, तो हम यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी लेके चल रहे हैं, x एक्सिस के ऊपर हमने टाइम एक्सिस लिया है। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, रिटन इन द ब्रैकेट, व्हाइल द टाइम यूनिट इज सेकंड। सो वी आर टेकिंग इट इन यूनिफॉर्म मोशन एंड वी हैव स्टडीड राइट नाउ दैट यूनिफॉर्म मोशन में हमारी जो वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है। जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी जो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर है वही वेलोसिटी हमें थ्रू आउट द मोशन मिलेगी। तो हमारा जो ये ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है VAB वाली, दिस इज द बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। अब हम इससे आगे बात करते हैं बेटा कि कोई पॉइंट ABCD है, जो हमारा टाइम है T1, उसके ऊपर हमारी वेलोसिटी है A पॉइंट के ऊपर, T2 है उसके ऊपर हमारी वेलोसिटी है B पॉइंट के ऊपर। तो अगर हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच का एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा बेटा जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे हमें पता है जो वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम रिलेशन था उससे हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देगा। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि विच वैल्यू कैन वी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो योर आंसर विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर T1 पोजीशन के ऊपर हमारा डिस्प्लेसमेंट x1 है, T2 पोजीशन के ऊपर हमारा डिस्प्लेसमेंट x2 है, then your displacement will be equal to x2 minus x1, that will be equal to area ABCD and you can see ABCD is a rectangle and rectangle का area हमारा क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी कितनी है यहाँ पर V है और ये कितना हो जाएगा T2 माइनस T1। सो एरिया x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू V इंटू T2 माइनस T1। यहाँ से जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, वही x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो बेसिकली यहाँ पर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना सीखा है। तो इसी तरह से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अगला हमारा आता है बेटा, अभी तक हमने जो भी बात करी है ऑल दोज आर अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, जिसमें हमारा कोई भी पार्टिकल ट्रेस करता है कोई पाथ, हमारा टाइम जो है वो तो एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होता जा रहा है, बट if the object is traversing unequal interval of path, or you can say unequal displacement in equal interval of time, then that particle is said to be in non-uniform motion. और हमारा जो टाइम इंटरवल है वो कितना भी छोटा हो सकता है, that doesn't matter. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मतलब कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो बेटा क्या होगा, वहां पर एक्सीलरेशन का फैक्टर आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो जब पार्टिकल की वेलोसिटी है, चाहे अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, डजंट थिंक कि उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है या उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. अगर पार्टिकल की फाइनली वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दैट पार्टिकल इज सेड टू हैव एन एक्सीलरेशन. अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करते हैं, अगर आपके हाथ में कोई पेन है और आप उसको नीचे फेंकते हो तो आपका डाउनवर्ड मोशन में ही जा रहा है, तो उस केस में आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो सेम है बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसलिए वहां पर क्या हो रहा है, आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर अप्लाई होता है बेटा. इज इट क्लियर? अगर हम बात करते हैं सर्कुलर पाथ की, हमने सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तो एक कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में ट्रेस करता है तो सर्कुलर मोशन में हमें पता है कि जो हमारी रेडियाई होती है दैट इज सेंटर टू सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस इक्वल होती है, बट एट ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज चेंजिंग. दैट्स व्हाई उस केस में हमारा डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है और उस वजह से हमारा वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करता है. अगर हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्टरी होती है वो हमें पैराबोला मिलती है, और वेलोसिटी जो होती है उसमें मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में दोनों ही चीजों में चेंज आता है, तो वहां पर भी हमारा एक्सीलरेशन होती है. यहाँ पर हमने 3 अलग अलग केस डिस्कस किए बेटा. फर्स्ट केस ऐसा था जिसमें हमारा फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में डायरेक्शन सेम थी, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था. सेकंड केस सर्कुलर मोशन का था जिसमें कि मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन चेंज हो रही थी. बट इन द थर्ड केस बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर चेंजिंग. इट मींस anything, any component of velocity can change, it will result in having the acceleration. तो I hope आपको ये clear है. Acceleration and velocity of the body need not to be in same direction. Doesn't think कि वो same direction में, जैसे कि आप circular motion में देखते हो जो हमारा velocity है that is along the tangent, जबकि हमारा acceleration that is along the radii towards the center. अगर हम vertically एक body upward vertically throw करते तो उसकी भी बात कर सकते हैं. For a body moving with uniform acceleration, the average velocity is given as, हमने पहले भी इसकी बात करी है बेटा, v average is equal to u plus v upon 2. u is the initial velocity, v is the final velocity. लेकिन if a body can have zero velocity and non-zero acceleration, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, कैसे एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं. लेट अस सपोज कि हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपर डायरेक्शन में, और मैक्सिमम हाइट के पॉइंट के ऊपर उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए 0 हो जाएगी, बट उस पॉइंट के ऊपर उसका एक्सीलरेशन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा. इसी वजह से उस पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद में पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड आ जाएगा और उसकी वेलोसिटी वापस से इंक्रीज करना स्टार्ट होती है. अगला केस हमारा आता है, इफ अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इट मे हैव एक्सीलरेशन. तो ये केस हम किस तरह से डिस्कस करते हैं कि अगर बॉडी का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है बट उस केस में भी वो एक्सीलरेशन रख सकता है. तो आप इस केस के लिए एग्जांपल दे सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. सर्कुलर मोशन में थ्रू आउट द होल मोशन हमारे पार्टिकल की जो स्पीड है वो सेम रहती है, बट सर्कुलर मोशन में हमारा जो पार्टिकल है उसकी कर्व के ऊपर सर्कमफेरेंस के ऊपर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो एट ईच एंड एवरी पॉइंट उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, और हमारा जो टेंजेंट होता है वही हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है. इसलिए सर्कुलर मोशन में हमारा जो डायरेक्शन होगा वो वेरी करेगा, इस वजह से वहां पर एक्सीलरेशन का फैक्टर एग्जिस्ट करेगा. नेक्स्ट हमारा आता है, इफ अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट हैज नो एक्सीलरेशन. इसका केस क्या देख सकते हो बेटा आप, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन, और उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है x किसी भी nth सेकंड में, और नेक्स्ट सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है x प्लस a और उसका एक्सीलरेशन है a. तो इस केस में आप बोल सकते हो कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कोई एक्सीलरेशन नहीं था. अब आ जाता है अगला केस, एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल इन वैक्यूम इज यूनिफॉर्म. जब हमारी बॉडी कोई भी फ्री फॉल करती है, आपने किसी पेन को थ्रो किया है, आपने एक स्टोन थ्रो किया है,
तो हमारी बॉडी वैक्यूम में फ्री फॉल की कंडीशन में होती है, उसके